फायरसाइड चैट सेशन आने वाला है. So let's settle down. It's a quick fireside chat, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, but it would be very, very interesting also. And it is titled as Painting It Green. क्योंकि हम Go Green, Sustainability की बातें कर रहे हैं, तो टाइटल भी ऐसा ही होना चाहिए ना फायरसाइड चैट का. Painting It Green. Featuring our environmentalist People Baba sir and Mr. Sandeep Chauhan. They will discuss the importance of green initiatives and how each one of us can contribute to a greener planet. So for this, there is something. Oh, sorry. Can we all see this? Is it visible? You want to look at it? Certificate of participation. Go Green, Sustainability. Give Me Trees Trust in association with India CSR Sustainability Conclave and Brand Global Media is committed to plant one tree on behalf of each one of us. Isn't it a great step towards our mission? So I guess let us not forget our mission, our vision towards making this earth more beautiful and more green. So please, before you leave, आप अपना प्लीज गेट पे ही रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास ही सर्टिफिकेट है, प्लीज कलेक्ट करके जाइएगा. प्लीज डू नॉट फॉरगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो हमारी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डू कलेक्ट योर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द registration desk itself. Thank you. So now we come up with the fireside chat, which is nothing less but painting it green. May I request People Baba and Mr. Sandeep Chauhan, the founder of Flora Saviors NGO, a dedicated social worker and artist manager. He is passionate about environmental conservation, making a positive impact through his initiatives. Mr. Sandeep, I invite you to the platform. Please give him a huge round of applause. यार तालियां खुद ही बजनी चाहिए कि मुझे बोलना पड़ेगा बार बार. छोटे बच्चों की तरह मैं टीचर की तरह गाइड करती हूँ. प्लीज क्लैप कर दो, प्लीज क्लैप कर दो. नाउ मिस्टर सर पीपल बाबा सर, प्लीज हैव कम. A renowned environmentalist and the driving force behind Give Me Trees in Movement. So, this is Give Me Trees Trust. With a lifelong dedication to planting and nurturing trees, People Baba has contributed to the growth of millions of trees across India. His commitment to greening the planet has inspired countless individuals and communities to take action in persevering and expanding green cover. Thank you so much. I leave the platform to both of you. Over to you. Hello. Am I audible? Yes. Okay. First of all, good afternoon, everyone. I think it's good evening now. सब लोग सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि what do you understand by painting it green? कोई भी एक लोग? Anyone? Please. If I see the world from the Google map from the top, I want it green. Okay. सी सो मेरा बस ये क्वेश्चन पूछने का इसलिए था क्योंकि ये थीम है हमारा आज पेंटिंग इट ग्रीन. सो सर हमारे साथ में इतने सालों से पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं. सो सर आपका क्या नज़रिया है, आपको जो आज की थीम है इसके लिए लेके आप क्या सोचते हैं? भाई मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है. ग्रीन का मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब हम आप बैठे हुए हैं यहाँ. अगर ग्रीन नहीं है तो होंगे ही नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं है, है ना.
So green is life giving. क्लोरोफिल, ग्रीन मीन्स क्लोरोफिल, आपका जो ग्रीन पिगमेंट है उसी से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से जीवन है। और मतलब ये चीज़ बहुत लोग समझते नहीं हैं। जैसे आशिम ने बड़ी प्यारी बात बोली कि अगर प्लैनेट को ऊपर से देखते हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि फाइलों में हमारा फॉरेस्ट कवर 24.3% है फाइलों में, पेपर में, FIR रिपोर्ट में। आप ऊपर से गूगल सैटेलाइट मैप पे देखिए 8.4%, वो असलियत है, ठीक है। और जिस तरह की 140 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है, तो आपको और कितनी पेंटिंग करनी है? कम से कम 50 तो करोगे, 50% तो होना चाहिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैं आपका ये जो पेंटिंग वाली बात है, मैं इसको थोड़ा डीप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स हीट एंड पोल्यूशन। एनीथिंग मैन मेड, कुछ भी है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग हीट एंड पोल्यूशन। कैमरा चल रहा है, ये प्रोजेक्टर चल रहा है, वो लैपटॉप चला रहे हैं, हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, हीट एंड पोल्यूशन है। एनीथिंग दैट इज नेचुरल, एनीथिंग जो गॉड मेड है, जो नेचर ने बनाया, वो एब्जॉर्ब्स हीट एंड पोल्यूशन। बस अगर आपको ये एक चीज समझ आई, दो चीजें समझ आ जाएं, एक ग्रीन, ग्रीन मीन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मीन्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स यू एंड मी। एक तो ये चीज समझ आ जाए, और दूसरी चीज जो अभी आपको बताई। तो तीसरा जो पेंटिंग इट ग्रीन की बात है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट फिजियोलॉजी, इट इज़ अबाउट साइकोलॉजी ऑल्सो। अगर आप, इसीलिए तो 53 कंट्रीज़ जो डेजर्ट कंट्रीज़ हैं, जिसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, या जो भी आप ले लीजिए, वहाँ पर आप हमेशा देखिए, हमेशा वॉर होती है, हमेशा लड़ते रहेंगे, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर लड़ते रहेंगे। लेकिन आप भूटान उठाइए, जापान उठाइए, साउथ कोरिया उठाइए, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बर्मा है, ठीक है, उनका फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर अलग तरीके से है। लेकिन अमूमन तौर पे ये देखा जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख लीजिए, आप जर्मनी देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, आप नॉर्वे देख लीजिए, फिनलैंड देख लीजिए, आप कोस्टारिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी। सो ग्रीनरी जो होती है, अगर आप सिर्फ ट्राइबल्स को देख लीजिए, अमेजोन के चाहे ट्राइबल्स को देख लीजिए, डिजीज़ फ्री तो नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं, लेकिन ये है कि जो लाइफस्टाइल हमारे को, जो आपको मेरे को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं शहर में बैठ के, वो नहीं होती। सो ग्रीन जो है वो आपको इरिटेट नहीं करता, आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देता, इफ़ यू आर सराउंडेड विद, इसीलिए वो फ्रेज़ आता है हैप्पी गार्डनर का, है ना, कि ये हैप्पी गार्डनर है। तो रीडिंग एंड गार्डनिंग जो होती है वो उसका है। तो जो पेंटिंग ग्रीन की बात है, उसमें बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास हरियाली, इफ़ यू आर सराउंडेड विद प्लांट्स, उसका जो मुद्दा ये है कि योर लाइफ विल बी मच बेटर, इट विल बी हेल्दियर, इट विल बी हैप्पियर, एंड इट इज़ ऑल टू डू विद आवर वेलफेयर। सो हरियाली जो है, इसीलिए कहते हैं कि हरियाली है तो खुशहाली है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस मैं भी अपना एनजीओ चला रहा हूँ एंड अभी मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज में हूँ, लाइक मुझे 5 साल हुए हैं। सो आई रियली वांट टू नो कि लाइक आपने जब स्टैम्प पे किया था, तब तो इतना क्लाइमेट चेंज का मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा रहा होगा। तो आपके दिमाग में उस टाइम, हेलो सॉरी, तो आपके दिमाग में उस टाइम पे कैसे आया कि आपको लाइक पेड़ लगाना है, एंड ऐसा क्या चीज़ हुई जिससे कि आपने लगा कि नहीं मुझे भी ये पेड़ लगाना है? आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उस ज़माने में ये वोकेबलरी नहीं होती थी, सस्टेनेबिलिटी, SDG, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट वॉरियर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज़ें होती ही नहीं थी उस समय। हम 1976 से 1977 से जब हमने काम शुरू किया, और काम क्या शुरू किया, ये मैं आज भी, इट इज़ माई हॉबी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद, वो तो बाई चांस CSR आ गया, वो बाई चांस कॉरपोरेट्स आ गए, वो बाई चांस लोग आ गए कि नहीं जी आप जो काम कर रहे हैं हम उसमें कुछ फंडिंग करना चाहते हैं। 36 इयर्स हम लोगों ने बगैर किसी कॉरपोरेट के, और सरकार से तो आज तक हमने 1 रुपया तक नहीं लिया, अठन्नी भी नहीं लिया आज तक,
ठीक है, ज़मीन वो लोग दे देते हैं हमको, हम उस पर काम करते हैं। तो जो आपका सवाल है कि हम लोगों ने शुरू क्यों किया, क्योंकि हमारी टीचर ने बोला था। हमारी एक मिसेस विलियम्स होती थी, 4th की मेरी क्लास टीचर थी। तो उन्होंने एक दिन ये कहा कि बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, एमबीए ये तो कोई भी बन सकता है, ये तो कोई भी बन जाएगा, ये तो थोड़े बहुत रिसोर्सेज हों, आप अच्छी सी पढ़ाई करें। माई फादर वॉज अ कर्नल दैट टाइम, ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। सो मैं फौजी का बच्चा हूँ, तो वो कहते कि तुम फौज में भी जा सकते हो, फादर तुम्हारे कहेंगे तो डॉक्टर भी बन जाओगे। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कोई जो 24/7/365 कुछ पृथ्वी के लिए कुछ कर रहा हो। सो शी यूज्ड टू रेट फार्मिंग एज वेरी टॉप ऑफ द लाइन। तो वो हमेशा कहती थी अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा है और पढ़ाई में अच्छे हो तो फार्मर बनो। अब ये भी अजीब सी एक बात होती थी, ये हम 1977 की बात कह रहे हैं। एनीवे, तो मुद्दे की बात यह है कि जब हमने उनसे पूछा सो व्हाट शुड आई डू, तो उन्होंने कहा कि ग्रीन कवर को बढ़ाओ। और वो एक कीवर्ड हमें देके गई जो मैं आज भी उस कीवर्ड को लेके चलता हूं, वो है छाया। उन्होंने एक सेंटेंस में पूरे पृथ्वी की विपदा हमको समझा दी। क्लास में बैठे थे, हम लोग नीचे बैठा करते थे, वो बैठी थी ऐसे ही कुर्सी पे, और उन्होंने एक दिन कहा देखो बेटा, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, छाया खत्म हो रही है। छाया खत्म होती है तो गांव गर्म होता है, पृथ्वी गर्म होती है, तालाब गर्म होते हैं, नदियां गर्म होती हैं, हिमालय गर्म होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है। कुछ भी नहीं है, ये सब बातें इधर हो गया वो हो गया, एटमॉस्फेरिक साइंसेस की बातें करते हैं, कोई फ्यूल्स की बात करता है, कोई कार्बन की बात करता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है, कोई मीथेन की बात करता है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है। ठीक है, वो सब है, वो अलग साइंस है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? छाया खत्म हो रही है। आपको जब धूप लगती है तो आप कहाँ जाते हैं? पेड़ की तरोवर की छाया के नीचे जाते हैं। ठीक है, तो आप जितने मर्जी मोटराइज्ड कुछ सेंसर्स लगा लीजिए, पानी के फव्वारे लगा लीजिए, ये बच्चों वाले काम है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नर्सरी के होते हैं, वो ये खिलौने हैं जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारा फंड और बहुत सारे CSR के लोग बहुत सारी आजकल चीज़ों में इसमें है। सो आई थिंक मे बी आई एम ओल्ड स्कूल बट इट्स फाइन, बिकॉज हमारी कॉमन सेंस ये कहती है अगर किसी एक ज़मीन के टुकड़े को भी मुझे ठंडा करना है तो मैं वहाँ पौधा लगाऊंगा ना, मैं वहाँ छाया क्रिएट करूँगा। तो जैसे अच्छा, छाया से क्या होगा? छाया से, क्योंकि आपका पौधा ही एक चीज़ है जो ग्रीन है, वही एक चीज़ है जो थर्मोस्टेट है आपके टेम्परेचर का। आज आप ये लोधी गार्डन्स में बैठे हैं, अच्छा आप लोधी गार्डन में से सारे पेड़ हटा दीजिए, इसकी क्या प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगी? ये जो अमृता शेरगिल मार्ग है और ये कलाम साहब की जो सड़क है या शाहजहां की रोड है, ये क्यों आपको अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि छाया। वृक्ष बाद में आते हैं, वृक्ष बाद में आते हैं। छाया के लिए आपको ग्रासेस चाहिए, ग्रासलैंड चाहिए, श्रब्स चाहिए, अलग अलग स्पीसीज चाहिए। लोग हम बदनाम हैं ऐसे ही खामोखा के हम पीपल बाबा हैं, पीपल, अरे पीपल हम लगाते थे, 36 साल हमने पीपल लगाए, लेकिन अब हम फॉरेस्टेशन में हैं तो 150 प्रकार की स्पीसीज लगाते हैं, वेटलैंड्स पे काम करते हैं, बहुत आयाम हैं इस चीज़ के। सो बस यही कहूँगा, क्योंकि मेरी टीचर ने कहा, और शाम को जब आते थे तो नानी कहा करती थी आपकी टीचर बिल्कुल ठीक कहती हैं, तो बेटा जो कर सकते हो करो। तो उन्होंने कहा वृक्षों की संख्या को बढ़ाओ, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन योर कंट्री। और इससे बड़ी अभी हमने पेट्रियोटिज्म की भी अभी स्पीच सुनी थी, तो वो कहती थी कि इससे बड़ी राष्ट्र प्रेम नहीं हो सकता कि तुम वाकई पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसा क्रिएट कर दो जो 500 साल 1000 साल तक जिंदा रहे। ठीक है, सो इसी तरह से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया, रोड साइड प्लांटेशन शुरू की। 36 years we did roadside plantations. We did about 240,000 kilometers of national highways and state highways. We got a lot of support from the Indian Army, from BSF, CRPF, ITBP, Assam Rifles. I did a lot of work in Northeast. My इनिशियल जो हमारा था महाराष्ट्र में था, फिर जम्मू कश्मीर, एंटायर नर्दर्न कमांड। आज ब्रिगेडियर साहब विलियम्स आए हुए थे, मैं उनको पूरे स्टेशन और कैंटोनमेंट्स के नाम गिना रहा था, कहाँ कहाँ हमने काम किया। एंड ऑफ कोर्स 2014 के बाद जब कॉर्पोरेट सेक्टर ने देखा हमारा काम और फिर CSR नाम की एक चीज़ आ गई, तो फिर देन ऑफ कोर्स थिंग्स बिकेम वेरी डिफरेंट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस आई एम फ्रॉम देहरादून, सो अभी क्या हो रहा है कि देहरादून में 2003 में मैं देहरादून शिफ्ट हुआ था, तो मेरे पापा भी आर्मी में ही थे, तो उनकी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे। सो वी शिफ्टेड देयर। तो 2003 में उस टाइम पे देहरादून का मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था, एंड अभी ऐसा हो गया है कि
मैं आप आते रहते हैं वहाँ पे, मैंने देखा है आपकी स्टोरीज जी। वगैरह, तो आपने भी वो देहरादून को देखा है और आप आज का देहरादून देखते हैं, तो आपको क्या फील होता है? नहीं, बहुत रोना आता है, बिकॉज आई स्टडीड इन कैमरन हॉल देहरादून, और 27 गढ़वाल राइफल्स का जो ETF था, जो वहाँ का इको टास्क फोर्स था, मैं उसका वन ऑफ द लीड्स था जब हमने राजपुरा से लेके बारलोगंज तक 4,60,000 पेड़ लगाया था। मैं उस टीम में था, मैं बल्कि ट्रेनिंग दे रहा था सोल्जर्स को। उसमें दुख होता है। देखिए, ये कर्मों का खेल है, जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर आप ऐसे कॉरपोरेटर चुनोगे, ऐसे MLA चुनोगे, ऐसे MP चुनोगे जिसको कोई तालाब से मतलब नहीं, कुएं से मतलब ही नहीं, पानी से मतलब नहीं, ग्लेशियर से मतलब नहीं, हिमालय से मतलब नहीं, उसको मिट्टी से मतलब नहीं, उसको आपकी हवा से मतलब नहीं, और वो आपको तूतनी सी दे देता है, आपको छुनछुना दे देता है, हाँ जी, धर्म के नाम पे और कई कई चीज़ों के नाम पे, तो ठीक है, अपने कर्मों को भुगतो आप। Where's the problem? You voted for them and they are doing it. कौन करता है? मुझे बताइए, देहरादून के पेड़ कौन काट रहा है? चोपड़ा जी काट रहे हैं, गुप्ता जी काट रहे हैं, अग्रवाल साहब काट रहे हैं, कौन काट रहा है उसको? लोकल्स। नहीं, कौन काट रहा है? सरकार काट रही है, सरकार काट रही है। और सरकार को बैठाया किसने? सरकार को वोट किसने दिया? आपने दिया। सो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, एंड दिस इज समथिंग आई लर्न व्हेन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, मेरी आजीविका जो है टीचिंग से चलती है। व्हेन आई वेंट टू हैनोवर यूनिवर्सिटी टू टीच, मैं जर्मनी में पढ़ाता था इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियरियन स्टडी। तो वहाँ जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में साइकिल पे घूमा तो मुझे समझ आया कि वहाँ का पॉलिटिशियन कितना डरता है सिटीजन से, कि कहीं वो राशन की दुकान पे वो क्वेश्चन ना पूछ ले, तुमने मेरे टैक्स के साथ किया क्या, तुमने मेरी नदी साफ क्यों नहीं करवाई, तुमने हमारी सड़क रिपेयर क्यों नहीं कराई, तुमने हमारा पार्क क्यों नहीं बनवाया। वहां के पॉलिटिशियन डरते हैं सिटीजन से, और हमारे यहाँ पे कोई मुद्दे की बात नहीं करता। एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, कोई नदी की बात नहीं करता, कुछ नहीं है। आप अच्छा, और ये जो 3 लोग हैं, कॉर्पोरेटर, MLA, MP, उनसे तो आप कभी उनको बुला के कोई बात ही नहीं करते। ये पैनल डिस्कशन हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, उनको बुलाइए और उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये देहरादून का नहीं है, यही सेम लुधियाना का है, हर सिटी का ये हाल है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 46 ईयर्स हो गए हैं, 2,70,000 हेक्टेयर के हमने फॉरेस्ट बनाए हैं सर इस देश में। द फर्स्ट कंट्री टू गो डाउन, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो होगा, पहला होगा बांग्लादेश, क्योंकि 20% 18% तो डूब चुका है, वो तो पूरा का पूरा जाएगा। आप उसकी फिक्र मत करो फ्यूचर की कि क्या होगा, वो तो क्लाइमेट चेंज में अभी 20 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। सेकेंड विल बी इंडिया। हमारा एग्रीकल्चर जाएगा, हमारी फार्मिंग जाएगी, हमारी जितनी डिजीजेज आ रही हैं, डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ आई थी, उसका नाम था कोविड, उसने तो सिर्फ 4,60,000 मारे। आप जाइए सफदरजंग और एम्स का सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 5,36,000 बच्चे तो ऑलरेडी मर चुके हैं पोल्यूशन के कारण। हम जो मुद्दे की चीज़ है उसके ऊपर कभी बात ही नहीं करते। पोल्यूशन इज द बिगेस्ट किलर, एयर, वाटर, सॉइल। अभी तो मैं सिर्फ हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो देहरादून का जो है, बहुत रोना आता है जब हम देखते हैं। आप एक नेशनल पार्क बनाने में मालूम है कितने साल लगते हैं? 100 साल, 200 साल, 300 साल की ग्रोथ होती है। आप ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट को आप वो नहीं करते। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर कंपनसेटरी फॉरेस्ट्री नाम की एक चीज है। आप कैसे कर सकते हो? 200 साल पुराना पौधा आप पीपल का काट के, जामुन का काट के, आप वहां पर गमले में एक छोटी सी तुलसी लगा देते हो। मतलब लॉजिक भी नहीं है उस चीज का। एक होता है लॉजिकल, एक चीज है वो, ठीक है, उसका वो है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट, एंड हियर आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड, मे बी आप शायद वो क्वेश्चन ना पूछ रहे हो लेकिन मैं ऐड करूं, यहाँ पर CSR की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज के अंदर, क्योंकि कम से कम CSR के लोग पढ़े लिखे तो हैं, कम से कम उनको पता तो है, एक पॉलिसी तो है, कम से कम उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है, रिपोर्टाज तो है, एक कम से कम उसमें इम्पैक्ट असेसमेंट तो है, ऑडिट तो है, वेरिफिकेशन तो है। आपको मालूम है जितने इंडिया में सैपलिंग लगते हैं, अभी तक हमें अमेज़न बन जाना चाहिए था, हमें तो अमेज़न फॉरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन है क्या 2% to 2.5%।
ये मैं नेशनल एवरेज बता रहा हूँ, दिस इज योर सर्वाइवल. 2.5% इज द सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट. सर वन मोर क्वेश्चन. सर अभी आपने उत्तराखंड में देखा कि ऑल वेदर रोड जो प्रोजेक्ट बना था, लाइक बहुत सालों से चल रहा है, अभी भी चल, इस हिसाब से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वहाँ पे, कहीं पे भी देख लीजिए ऑल ओवर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. सो अब वो जो डैमेज जो हो चुका है, अब हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं? लाइक उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? Good question. इंडिविजुअल हम लोग क्या कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन. मैं अभी अल्मोड़ा में था 3 दिन, तो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स पूछ रहे थे. मैंने कहा आप इसमें लार्ज स्केल सीडिंग ऑफ ग्रास के साथ करो. पौधा लगाने के पास आपके पास टाइम नहीं है, पेड़ लगाने का टाइम नहीं है. आपने इतना ब्लास्ट किया है पहाड़ों को, उसके अंदर पेड़ टिकेगा ही नहीं. आप सिर्फ और सिर्फ ग्रास के साथ सीडिंग कीजिए, आप श्रब्स के उसमें डालिए, ताकि कम से कम 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो मिट्टी को पकड़ ले. जो ग्रास की रूट्स हैं वो उसको पकड़ ले. और हम लोगों ने किया है सोलन जिला में. अब मैं एक पौधे का नाम दूंगा जो यहाँ पर नेटिव ट्रीज करते हैं, वो एकदम उछल पड़ेंगे. लंटाना से हमने सोलन के, लैंसडाउन के, कसौली के, अल्मोड़ा के क्षेत्र के और कई ऐसे पहाड़ों को हमने लैंडस्लाइड से जल बताया. अब यहाँ पर उसको लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि लंटाना को मानते हैं कि वो, लेकिन वो पहाड़ को पकड़ के रखता है. और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एग्जाम्पल्स लेके बताया. वो कहते हैं एंड दे एग्रीड यस सर ये है ठीक है. कई जगहों के लिए वो इन्वेसिव हो सकता है, कई जगहों के लिए वो एक वरदान भी हो सकता है. सो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है. और कई ऐसे ग्राउंड कवर के ऐसे प्लांट्स हैं जो पहाड़ों को पकड़ के रख सकते हैं. और दूसरी बात, फिर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया था, आई थिंक 14 जुलाई को आया था. कब है? एवरीबडी शुड नो. आर्मी ने डॉक्यूमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, वी डिड नॉट वांट दीज रोड्स. हम 10 साल से कह रहे हैं गवर्नमेंट को, प्लीज डोंट मेक दीज रोड्स. दे आर नॉट गुड फॉर स्ट्रेटेजी, दे आर नॉट गुड फॉर डिफेंस, दे आर नॉट गुड फॉर एक्सेस. हमें जो सड़क बनानी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, हम अपने आप बना लेंगे. हमें जो आर्मी की मूवमेंट के लिए चाहिए वो कर दो. बाकी जो भी सड़कें वहाँ बन रही हैं वो, क्योंकि टेंडर खेलना होता है, वो अपना जो भी चीज़ें होती हैं वो सरकार अपने आप अपना काम कर रही है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेलफेयर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एनवायरनमेंट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इवन डिफेंस स्ट्रेटजी. ओके सर, लास्ट अभी हम लोग, हाँ, so any message you would like to give the audience like for this thing, sustainability or like planting trees? देखिए, पेड़ लगाने से ही कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनता. आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप इंडिविजुअल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम रख सकते हैं, अगर गाड़ी की जगह टू व्हीलर की जगह मेट्रो की जगह बस की जगह अगर आप बैटरी वाली नहीं तो पैदल चल लीजिए, आई थिंक यू आर एनवायरमेंटलिस्ट. अगर आप डिस्पोजेबल्स यूज़ नहीं करते हैं, डिस्पोजेबल्स को अगर आप अपनी ज़िंदगी से डिस्पोज कर देते हैं, स्टील यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, यू आर, मेरी रिस्पेक्ट में आप एक बहुत प्यारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं. और अगर आपको वाकई सपोर्ट करना है, जो फ्रंट लाइन एनवायरमेंटलिस्ट है वो हमारा फार्मर है. अगर CSR फंडिंग जानी चाहिए, मैं एफॉरेस्टेशन में हूँ, मैं खुद नहीं बोलता किसी को कि हमारे को पैसा दो, ये परमात्मा का दिया बहुत कुछ है. 46 साल से हैं हमारे पास, इंडिविजुअल लेते हैं, डोनर्स हैं कि, लेकिन फार्मर्स को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसको लगता है कि केमिकल जब तक मैं नहीं डालूंगा सब्जी उगेगी नहीं. देयर आर 1001 वेज. और हमारी देश की इकोनॉमी तभी चलेगी जब हमारा फार्मर जो है वो प्रोग्रेसिव होगा. उसको हम सपोर्ट दे पाएंगे, उसको हम मार्केट सपोर्ट दे पाएंगे, उसको सॉइल केमिस्ट्री समझा पाएंगे. उसको हम, फार्मर बेचारे को तो ये भी नहीं पता, कि उसको पता सब कुछ है लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं जाती है, हम लोगों की सपोर्ट नहीं जाती है. आई थिंक वन थिंग दैट यू शुड डू इज सराउंड योरसेल्फ विद प्लांट्स. आपके पास जंगल नहीं है लेकिन सबके पास आंगन है, सबके पास बैल्कनी है, सबके पास रूफटॉप है, सबके पास विंडो सिल है, सबके पास एक टेबल है, सबके पास एक किचन होगी, सबके पास एक जीना होगा, सबके पास एक स्टेयरकेस होगा. मैं कहता हूँ शुरुआत करो सिर्फ 20 गमलों से. लेकिन एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हर फोरम में कहता हूँ, ग्रो योर ओन फूड.
जो अपना खाना उगाएगा वो मारा जाए, वो राजा। ग्रो योर ओन फूड, चाहे वो छोटा सा आंगन हो, चाहे छोटा सा गांव हो, चाहे छोटा सा शहर हो, आपका ऑफिस स्पेस हो, आपका बंगलो हो, आपका फार्म हाउस हो, प्लीज 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 ग्रो योर ओन फूड। व्हेन यू ग्रो योर ओन फूड, एक तो उसका जो ROI है वो 90 दिन का है, ठीक है। अगर आप पीपल और नीम लगाएंगे तो वो तो 5 साल के बाद उसकी कैनोपी आएगी, 4 साल बाद आएगी। लेकिन अगर आप गोभी लगाएंगे, मूली लगाएंगे, गाजर लगाएंगे, मटर लगाएंगे, चना लगाएंगे, धनिया लगाएंगे, पुदीना लगाएंगे, वो तो 80 से 85 दिन से लेकर 90, 95, 100 दिन में उसका आपको रिटर्न भी आएगा। इससे बड़ी इक्विटी और कुछ नहीं है ना। एक छोटा सा बीज और फर्स्ट क्लास 100 दिन में उसका रिटर्न, और आपकी हेल्थ अच्छी, आपके बच्चों को अच्छा संस्कार मिला, आपके परिवार के लिए आपने खाना उगाया। अंत में आपको ये बोलूं कि हमारे दादाजी हमें कहा करते थे, किसान की डेफिनेशन क्या होती है। जो गन्ना उत्पादक है, जो कॉटन उगाता है, जो मेज़ उगाता है, जो मंडी के लिए उगाता है, उसको वो दुकानदार बोलते थे, किसान नहीं बोलते थे। किसान वो होता है जो अपने परिवार के लिए खाना उगाता है। नहीं, राइट। तो आप भी एक अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बैनर लेके प्रोटेस्ट करके, जनता वो जंतर मंतर पे बैठ के और यहाँ बैठ के सड़कें हाईवे चक्का जाम करके उसको एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविज्म है। एक्चुअली इंडिया में ना 98% एक्टिविज्म है, 22% एक्शन है। इसको रिवर्स करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा। और आखिरी में एक बात कहूँगा, 2014-2016 में और बल्कि 2019 तक मैं कोई भी CSR कॉन्क्लेव और ये वो सब होते थे, मैं नहीं जाता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं फील्ड का तो बादशाह हूं। 2,70,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने जंगल लगाए, लेकिन मुझे भाषा नहीं आती। तो आशिम जैसे अच्छे बच्चे और बहुत सारे और लोगों ने मुझे पढ़ाया कि सर एक लैंग्वेज नाम की चीज़ होती है, भाषा होती है। कभी कभी बोल दिया करो सस्टेनेबिलिटी, कभी कभी बोल दिया करो कार्बन फुटप्रिंट, कभी कभी बोल दिया करो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप तो बिल्कुल ही देसी उसमें, ठीक है। क्यों हम लोग ऐसे हैं कि हमें आप दे दो 100 एकड़ ज़मीन, हमें मालूम है 2 साल में उसके अंदर कैसे बाग भी आ जाएगा, उसके अंदर जंगल वो भी हो जाएगा, कैसे उसको आबाद करना है, कैसे ग्रासेस, कैसे पॉन्ड्स बनाने, कैसे ट्रेंचेस बनानी है, कैसे उसमें तालाब बनाने, कैसे। हम फील्ड के लोग हैं, हमें नहीं पता था। आई एम सो ग्रेटफुल, दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक टू एंड। क्योंकि CSR कि ये मंदिर में हम यहाँ खड़े हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू HCL फाउंडेशन कि उन्होंने हमें पहली बार उन्होंने जब हमें फंड दिया तो उन्होंने कहा, वो बड़े अचंभे में थे कि आपके पास ऑफिस भी नहीं है, आपके पास टेबल भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, 4 लाख लोग आपके साथ काम करते हैं, 17,000 फैमिलीज काम कर रही हैं, आपके पास ऑफिस भी नहीं है। एक बरसाती है छोटी सी पॉकेट 4 मयूर विहार में, जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहीं से हम अपना पूरा इंटरनेशनल अफेयर्स चलाते थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा अच्छा सर हम आपको ऑफिस बना के देंगे, लेकिन हम रिक्रूटमेंट करके देंगे, हम आपको CSR प्रोफेशनल्स रख के देंगे, हम आपको लैपटॉप खरीद के देंगे, एक प्रिंटर खरीद के देंगे। और उन्होंने किया। दिस इज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, दिस इज द पावर ऑफ पार्टनरशिप। सो आई थिंक जब फील्ड के लोग उनके साथ करें, और उन्होंने आज टुडे वी हैव अबाउट 312 एम्प्लॉयज़, वी हैव 30 पीपल सिटिंग इन द ऑफिस। और आज भी मुझे नहीं पता कि हमारे कितने CSR और कितने प्रोजेक्ट्स चलते हैं, क्योंकि ऑफिस को ही पता है। आई एम मोर ऑफ अ फील्ड पर्सन, सो हमारा काम है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, बाहर करना। लेकिन यस, बस जाते जाते मैं ये कहूँगा, पढ़ना चाहिए, लिखना, ये पढ़ाई लिखाई है, ये भी एक तरीके की CSR लिटरेसी है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जेंटलमैन ने यहाँ जो कहा मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो फ्यूचर बिलोंग्स टू CSR, और CSR के स्वरूप बदलेगा। CSR कभी ESG बोला जाएगा उसको, कभी कुछ और नाम होगा, कुछ होगा। It is not going to go away from India. This is something very beautiful that has happened, and I am one example who can very proudly say that yes, we did इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल माइक्रो डोनेशंस के ऊपर हमने 36 साल काम किया। लेकिन ऑन द लास्ट 10 years बिकॉज ऑफ CSR पार्टनरशिप्स वी हैव गॉन इनटू मोर देन 60 कंट्रीज, एंड बिकॉज 63 कंट्रीज से वॉलंटियर्स हमारे पास आए, हमने उनको फील्ड पे ट्रेनिंग दी। लेकिन क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई वाली जो चीज़ें थी, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स ये कैसे होती हैं, ऑडिट्स क्या होते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, फोटोग्राफ्स कैसे होती हैं, ड्रोन शॉट्स क्या होते हैं, बेसलाइन क्या होती है, मिडल लाइन क्या होती है। अब
कोई अपलाइन भी होती है, पता नहीं, जो भी होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये सारी जो लैंग्वेज है ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। Very rightly CSR, said. की एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग गुड फील्ड वर्क। थैंक यू। Wonderful. so much, sir. Very, very enriching. Very enriching session, sir, People Baba. And yes, you rightly said education is very important. Please stay here. Mr. Asim, I would request to please come up on the stage and felicitate People Baba. And I would also request Ms. Bhavna, Ms. Payal Singh to come up on the stage and felicitate our other panelists. Mr. Sandeep Chauhan, and Ms. Payal she is the VP of US Staffing Firm. Please welcome her. Let's give her a huge round of applause. ये जो छोटे छोटे पौधे लेते हैं, यही अगर आप जामुन का, नीम का, पिलखन का, गूलर का छोटा सा पौधा लगा के बस इतना ही साइज में, ताकि ले जाने में भी आसान हो।